Hello students, wish you a very good day. Once again I am here with a new topic and my today's topic is A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is composed by a very famous and great poet John Keats. John Keats was a British romantic poet who had devoted his whole life to the poetry. A Thing of Beauty is an excerpt from his first epic poem Endymion, a poetic romance. Endymion is based on the Greek mythology, in which there was a young shepherd named Endymion who lived on Mount Latmos. Once he had a vision of Cynthia, the moon goddess, and you may call it Chandradevi. So the theme of this poem is nature, beauty, and youth. Keats loved the beauty to the extent that almost he worshipped it. The lines from this poem convey poet's eternal love for beauty. So before starting the poem, I would like to mention a very famous quote of Shakespeare that beauty lies in the eyes of beholder. सुंदरता देखने वाले की नज़रों में होती है. So first basic question arises from this poem is that what pleasure does a beautiful thing give us? Beautiful thing हमको कौन सी खुशी देती है? Are beautiful things worth treasuring? क्या beautiful things को सहेज के संभाल के रखने की ज़रूरत है? क्या वे संभाल के रखने योग्य चीज़ें होती हैं? Now it's time to explain the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. The poet speaks of the permanent nature of beautiful things. Beautiful things की permanent nature के बारे में बताते हैं कि जो beautiful चीज़ें होती हैं उनकी beauty कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी ब्यूटी हमेशा बनी रहती है. ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. उनकी जो सुंदरता होती है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है, हमेशा आनंद देने वाली होती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. द ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इंक्रीजेज विद द टाइम. जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ब्यूटीफुल थिंग्स की ब्यूटी बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. और यह सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, यह सुंदरता कभी कम नहीं होती. या इसकी जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर वर्थलेस. कभी वर्थलेस होती ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट होती ही नहीं है. यह हमेशा बढ़ती रहती है और हमेशा उतनी ही महत्व की होती है जितनी महत्व की यह ब्यूटीफुल थिंग शुरू में रहती है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बल्कि हमारे लिए एक बावर बनाती है. बावर किसकी बनाती है? बावर ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज. बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज का हमारे लिए एक बावर बनाती है. बावर इज़ अ सैडी प्लेस अंडर द ट्री. एक सैडी प्लेस होता है जहाँ वेयर वी गेट पीस, जहाँ हमको शांति मिलती है, सुकून मिलता है. तो ये जो अच्छी अच्छी मेमोरीज का एक बावर बनाती है ब्यूटीफुल थिंग्स, जो क्या करती है? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. मेंटल पीस की वजह से हम साउंड स्लीप लेते हैं जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स होती है. एंड हेल्थ. और जब साउंड स्लीप होती है, साउंड स्लीप प्रोड्यूसेज अ गुड हेल्थ. एक अच्छी हेल्थ आती है. वाई सो? बिकॉज अ साउंड स्लीप एंड अ गुड हेल्थ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. अच्छी नींद नहीं आई तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी कभी भी. एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और ओवरऑल जो ब्यूटीफुल थिंग्स की मेमोरीज से जो बावर बनता है उससे हम एक क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं. बहुत वी गेट अ साई ऑफ रिलीफ. हमको बड़ी राहत की सांस मिलती है और हम शांति से सुकून से रहते हैं. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग एक या दो दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए खुशी देने वाली होती है, सुकून देने वाली होती है. Now the next lines of this poem are: Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days
of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searchings. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. Poet says that when we wake up in the morning after a sound sleep, we try to connect ourselves to the earth. In this process, we wreathe a flowery band. Wreathing means गूंथना या पिरोना, flowery band फूलों की माला. We are wreathing means we are creating flowery band, beautiful things as a form of beautiful music, beautiful art and craft, beautiful poetry, beautiful inventions, beautiful thoughts एंड ब्यूटीफुल इमोशंस. हर ब्यूटीफुल चीज़ की रचना हम अपने आप को अर्थ के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं. वी वॉन्ट टू एसोसिएट अवर सेल्फ टू द अर्थ, सो वी क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, डिस्पोंडेंस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज सैड डेज, जो बुरे दिन होते हैं, ग्लूमी डेज के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, और अपनी लाइवलीहुड को, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी रास्ते हम इलीगल तरीके से चलाते हैं, जिन रास्तों पर चलने से सोसाइटी को नुकसान होता है, ऑल द अनहेल्दी वेज, वे सारे रास्ते अनहेल्दी होते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते. इन अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज जो हम अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए करते हैं, इनके बावजूद, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इन स्पाइट ऑफ inhuman dearth of noble nature, in spite of gloomy days, in spite of all the unhealthy and over darkened ways made for our searchings, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. इन सारे तकलीफ देने वाली चीज़ों के बावजूद भी कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी ऐसी हैं जो हमारे डार्क स्पिरिट से, हमारे परेशान मन से, हमारे अवसादग्रस्त मन से पाल को हटा देते हैं. एक धुंध, एक लेयर, एक कवर चढ़ी होती है हमारे डार्क स्पिरिट में, उसको कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी ऐसी हैं जो उस धुंध को हमेशा के लिए हटा देते हैं और हमें खुशी देते हैं. द नेक्स्ट लाइन्स आर, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid-forest brake, rich with a sprinkle of fair musk rose blooms. In this stanza, poet is giving a list of shapes of beauty, which he mentions in the previous line. जो भी shapes of beauty उन्होंने बताई थी, उनमें the sun, the moon, trees old and young, छोटे बड़े हर तरीके के पौधे, sprouting a saddy boon for simple shape. All these shapes of beauty providing a shady boon. क्या कर रहे हैं? एक shady boon provide कर रहे हैं. Provide for whom? Simple shape के लिए एक बहुत ही छायादार वरदान के रूप में एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो सिंपल सीप के लिए बहुत यूज़फुल होता है. सिंपल सीप मीन्स ऑल द लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ. इस अर्थ में जितने भी जीवधारी रहते हैं वो सब सिंपल सीप में आते हैं और वो सारे जीवधारी इन सारी ब्यूटीफुल थिंग्स को एंजॉय करते हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन. और ऐसी ही सुंदर डैफोडिल्स होती हैं जो हरे भरे संसार में रहती हैं. एंड क्लियर रिल्स, और क्लियर रिल्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी धाराएं. एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. और जो क्लियर रिल्स होती हैं, पानी की छोटी छोटी धाराएं होती हैं, ये गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए एक कूलिंग कवर्ड का निर्माण करते हैं. कूलिंग कवर्ड मीन्स कूल शेल्टर, जहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होता.
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट मीन्स वेरी डेंस फॉरेस्ट, और जहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल होता है, वहाँ ब्रेक, ब्रेक मीन्स अ फर्न लाइक वेजिटेशन। उस मिड फॉरेस्ट ब्रेक में रिच विद स्प्रिंकल ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में मस्क रोज के फ्लावर खिलते हैं और उनकी सुगंध से, उनकी फ्रेगरेंस से वो पूरा एटमॉस्फेयर भरा रहता है। नाउ दिस इज द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. After listed out so many shapes of beautiful things, in this line, poet looks even death as a beautiful thing. He says that, and such too is the grandeur of the dooms. Grandeur means very high ranked personalities, great persons. Dooms is a term which we may use as the last step of human life's journey. मानव जीवन के अंतिम पड़ाव को डूम्स कहा जाता है। तो पोएट को यहाँ पर महान लोगों की अंतिम यात्रा भी बहुत सुंदर दिखती है। We have imagined for the mighty dead. Poet is of the view here that जितनी भी माइटी डैड की हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, हमारे विचार में जितनी भी माइटी डैड की पिक्चर है, माइटी डैड आइदर दे आर अवर एंसेस्टर्स और फोर फादर्स, ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल द मार्टियर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। इन माइटी डैड ने मानवता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, इनके बारे में जितनी भी कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऑल द टेल्स, ऑल द स्टोरीज आर लवली एंड ब्यूटिफुल, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। एट लास्ट पोएट इज सेइंग दैट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, ऐसा फाउंटेन जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसे फाउंटेन की तरह हैं। और उस फाउंटेन से क्या निकलता है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक लाइक अ नेक्टर, नेक्टर की तरह, अमृत के समान इमॉर्टल ड्रिंक निकलता है एंडलेस फाउंटेन से। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, और ये एंडलेस फाउंटेन हेवन के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर पोर हो रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है। सो एट द एंड वी कैन से दैट all the beautiful things attract human beings to go forth in spite of so many sufferings and so many pains. So all the beautiful things as a form of nature are immense source of happiness and pleasure. Now it's time to have a look for the poetic devices in this poem. First poetic device is alliteration, cooling covered, noble nature, some say, metaphor, reading a flowery band, imagery, an endless fountain of immortal drink, and clear rays. Symbol, simple sheep, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सीप केवल सीप के लिए नहीं आया है, it refers to all the living being on this earth including human. Oxymoron, mighty dead, and transfer epithet, gloomy days. So at the end of this lecture I would like to say that enjoy this beautiful poem, develop some beautiful thoughts, and have a beautiful personality. See you soon. Have a good day.